اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ ہمارے پاس جو دین ہے، ایک دین ہے، دین اسلام۔ یہ ایک کتاب یعنی کہ قرآن پاک سے ماخوذ ہے، اور وہ ایک کتاب ایک اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، ایک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب، ایک دین۔ اس دین میں تضاد نہیں ہے۔ قرآن خود بیان فرماتا ہے، سورہ نساء کی 82 نمبر آیت، وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام، یہ دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کی دلیل یہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس میں تضاد نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کا یہ کلام ہوتا تو اس میں تضاد ہوتا، مختلف ہوتے، کسی جگہ پر کوئی بات بیان کی، کسی جگہ پر کوئی بات بیان کی۔ اس میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا، اس لیے یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس میں اسی دین میں دو نظام نہیں ہو سکتے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں مال و دولت کو جمع کرنے کے حوالے سے۔ یہ مال و دولت کو ہم نے، یہ دین اسلام نے ہم نے ایک روایت باہر سے داخل کی، اور اس سے ہم نے بنا دیا کہ عام زکوٰۃ دے کر آپ جمع کر سکتے ہیں۔ وہ ایک الگ کہانی تھوڑی سی، وہ بھی میں عرض کر دوں گا، یعنی کہ جمع کر سکتے ہیں آپ۔ اب آگے لوگوں نے بنا لی بات، جمع جس کا دل چاہے وہ جمع کر لے، جس کا دل نہیں چاہتا نہ کرے، سیدھی سی بات ہے۔ دونوں چیزیں، دو آپشن آپ کے سامنے رکھ دیے۔ وہ یہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں یہ آپشن نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، یہ تضاد ہے۔ میرے ایک بھائی نے مجھے کہا کہ نہیں، یہ دین میں ایسا ہی ہے، مطلب ایک طرح سے کہ دو آپشن وہ دیتا ہے دین، آپ جون سا چاہیں اس میں آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں۔ مثال انہوں نے دی کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، یا آپ قصاص لے کر معاف کر دیں، قصاص لے کر معاف کر دیں، پیسے لے کر، رقم لے کر معاف کر دیں، یا آپ قتل کا بدلہ قتل کر دیں۔ دو آپشن آپ کے سامنے ہوگا۔ جو سزا دیکھیں کس طرح راہ نکال لیتے ہیں، یا گمراہی کی راہ نکل آتی ہے، لوگ کر لیتے ہیں۔ وہاں سے ہم نے ہر جگہ دو آپشن آپ کے سامنے آگے، ہر معاملے میں آگے۔ میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں اور دوں گا بھی، آگے بتاؤں گا کہ ایک چیز قرآن بیان کر رہا ہے ایک چیز کو، اور ایک حدیث سے ہم نے بیان کر دی، وہ میں آگے بیان کروں گا۔ تو اس طرح دو آپشن آگے، جو آپ کو اچھا لگے گا، جو آسان لگے گا۔ بندے کی طبیعت، ہم ہیں ہی سہل پسند، بات ہے کہ ہم ہیں سہل پسند۔ جو انسان سہل پسند، ہر انسان سہل پسند، ہاں جی، سا نہیں چاہتا، جو آپ کو آسان لگے گا بندہ وہ اس کو اڈاپٹ کر لے گا۔ خاص کر اب یہ میں بات کر رہا ہوں جو کہ دولت کے شرعی واجبات ادا کر کے باقی مال کو جمع کرنا یا جمع نہ کرنا۔ میں کہتا ہوں یہ اگر دونوں چیزیں آپ کہتے ہیں کہ اسلام، یہ تضاد ہے۔ یہ دو نظام کی کو انڈیکیٹ کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے دو چیزوں کی، اور دین جو قرآن سے ماخوذ ہے وہ دو نہیں ہو سکتے، آپس میں ان میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے، اب جو ہمارا اس وقت چل رہا ہے، جو مروجہ دین چل رہا ہے، جو وقت چل رہا ہے، اس میں ہم نے، ہر بندے نے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے۔ کہاں سے پوری کرنی؟ اس کو کوئی آگے کا مستقبل میں کوئی تحفظ نہیں ہے۔ جو بندہ بوڑھا ہو جائے گا میری طرح، کیا کرے گا آگے؟ اگر پیسے اکٹھے نہیں کرے گا، نہیں اپنے، ہم طور پر کہتے ہیں برے وقت کے لیے آپ جمع کر رکھیں، تو نہیں کرے گا تو وہ اس کا گزارا کیسے ہی ہوگا؟ یعنی کہ جنہوں نے پیسے جمع کرنے ہیں انہوں نے بھی اپنی ضروریات پوری کرنی، وہ تو کر لیں گے، ٹھیک ہے جی، پیسے جمع کر رہے ہیں۔ اور جنہوں نے نہیں جمع کرنے، جو اس چیز کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن منع کرتا ہے کہ مال و دولت کو جمع کرنا، اور دولت کو جمع نہیں کرنا چاہیے، تو وہ اپنی ضروریات کیسے پوری کریں؟ بات دیکھیں، وہاں جمع کرنا نہ کرنا، یہ دو آپشن نہیں ہے، یہ تضاد ہے۔ دو نظام زار ہوتے ہیں ایسے، اور اس طرح معاشرہ چل ہی نہیں سکتا۔
क्योंकि उन्होंने दोनों ग्रोह हैं, दोनों तबकात जो हैं, जमा करने वाले और जमा ना करने वाले, वो उनकी ज़रूरियात पूरी कैसे करनी है। असल बात ये है, ये अगर ज़रूरियात जिस तरह कुरानी निज़ाम अगर बन जाए, जिसमें जिसमें एक तो पहले ज़रूरियात को डिफाइन किया जाए, वो मैं अलग बात, अलग एजेंडा है कि किसी की कोई प्रॉपर्टी नहीं, ज़रूरतें पूरी हुकूमत ने करनी है और हर बंदे ने काम करना है। कई सवालात हैं वहाँ, वो मैं फिलहाल यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता, बात लंबी हो जाएगी। मैं जहाँ सिर्फ दो ऑप्शन जो कहते हैं लोग, दो ऑप्शन है, और ये ना भी ऑप्शन कहें वैसे ही हम कहते हैं जमा भी कर लें जी। हज़रत उस्मान गनी बड़े मालदार थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों साहबान बड़े मालदार थे, यही दो मिलते हैं हमें। ये हम कहते हैं कि 2 लाख साहबा थे, यहाँ 1,24,000 अंबिया कराम की जो तादाद है उसके मुताबिक बनाते हैं, और उनमें हमें ये दो ही मिलते हैं, मालदार, और बाकी जो हैं वो बेचारे गरीब हैं। बहुत सारे, ज्यादा तादाद जो है फुकरा की है, गरीब है जो वो हैं। तो इस तरह हमने दोनों गंजाइशें रख ली और माल दौलत इकट्ठा करने वाले इकट्ठा किए जा रहे हैं। दूसरे बेचारे, इसका नुकसान यही है ना कि जो सेहत है वो बेचारे अपनी सुबह शाम रोटी के लिए तरसते हैं, वो ही नहीं पूरी होती। अगर वो जिनकी पूरी होती है वो भी जोड़ना शुरू कर देते। ये तो ऐसी हवस है, इसके अल्लाह ने कहा ना, माल की मोहब्बत रखते हो, बंदे के अंदर मोहब्बत है। तो जब अब उसको पता है कि मेरी जरूरियात मैंने कैसे पूरी करनी है, अपने बच्चों का इलाज कहाँ से करना है, उनकी स्कूल की फीसें कहाँ से देनी, बीमार हो जाए, सब जो कुछ भी उनकी है मामला आप दुनिया में देख ले ना, कहाँ से पूरे करेगा अगर वो पैसे इकट्ठे नहीं करेगा। फिर आगे उनकी शादियां करनी है, फिर देखें मुसाबकत, देखें माशरे में किस तरह की है, धूम धड़के से सबको जो कुछ हमने करना है, बहुत सारी मुसीबतें हमने हमने खुद ही अपने गले डाली हुई हैं, तो वो कहाँ से पूरी करेगा अगर पैसे जुड़ेगा नहीं, इकट्ठे नहीं करेगा, जमा नहीं करेगा। तो ये इसलिए हम सोचते हैं कि कोई कुरानी निज़ाम नहीं है। अगर कुरानी निज़ाम हो तो फिर हमें ये सोचना ना पड़े। हमने दीन इस्लाम को ऐसा समझा ही नहीं है। हम तो इसको, मेरा ये भी सवाल होता है कि मैं लोगों से पूछता हूँ कि मेरे भाई की क्या फायदा है दीन इस्लाम में, इस दुनिया में ये क्या देता है बंदे को। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान, कहता बहुत बहुत कुछ देता है जो मेरा इस्लाम है, जो मैं अर्ज करता हूँ, बहुत कुछ देता है। आप बता दें मुझे, मैं किसी काफिर को ये दावत दूं, गैर मुस्लिम को दावत दूं या तू दीन इस्लाम में आ जा, तो वो कहे भी ये इसका फायदा क्या है मुझे, मैं इसमें क्यों आऊं, ये क्या सारा जन्नत मिलेगी मरने के बाद के लिए ये सारा कुछ, ये दीन इस्लाम क्या सिर्फ मरने के बाद के लिए ये सारा कुछ नहीं मेरे भाई। यहाँ जन्नत देता है, ये जहाँ जिस दुनिया में भी जन्नत देता है। बात लंबी हो जाएगी, मैं यहाँ सिर्फ ये बताना चाहता था कि हमने किया क्या है, हमने किस तरह कोई मतलब कानून कायदा रहने ही नहीं देते। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जमा कर लो वो भी ठीक है, ना जमा करो वो भी ठीक है। ये कैसे हो सकता है, ये कुरान, ये तो तजाद है, ये खुला तजाद है, सीधा साधा तजाद है। इस तरह माशरा सलामती के साथ चल ही नहीं सकता, और नहीं चल रहा। आप खुद देख लें, ये इसको चलना कहते हैं, ये चल रहा है जिस तरह हाल है। लोग किस कदर कितनी तादाद में है अक्सरियत जो फिक्र माश में मुब्तला हैं बेचारे। बल्कि मौत बना हुआ है फिक्र माश उन लोगों के लिए, सुबह शाम दिन वो एक किए हुए हैं। बूढ़े बंदे, मैं रेडियां देखता हूँ, खींच रहे हैं, चल रहे हैं, मजदूर खड़े होते हैं रास्ते में, काम करने वाले बेचारे, उसमें बूढ़े लोग भी होते हैं, काम करना होता है ना, क्या करें वो। अगर इस्लामी निज़ाम हो तो ऐसा नहीं, कभी ऐसा ना हो, बिल्कुल ना हो। देखें जिस तरह बंदा, मतलब गवर्नमेंट का आदमी रिटायर होने के बाद उसको पेंशन मिलती है, इस तरह का क्यों नहीं निज़ाम बने कि जो दूसरे बूढ़े हैं जो सरकारी नौकरी नहीं करते, प्राइवेट काम कर रहे हैं, उनको भी जो आप कारोबार भी कर रहे हैं बेशक, उनकी भी एक उम्र की लिमिट के बाद उनको वजीफा मिले। इस बच्चों को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त में बच्चों को भी वजीफा मिलता था। खैर मैं उन निज़ाम, कुरानी निज़ाम की बात, ये मेरा मौजू नहीं है। मैं यहाँ ये दो बातें जो हम कायल है ना जिसके, कि ये भी कर लो और ये भी कर लो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत बात है। ये दो ऑप्शन नहीं है, दो ऑप्शन नहीं है, ये मुतजाद है आपस में, ये तजाद है मेरे भाइयों। ये ऐसे नहीं हो सकता निज़ाम, इस तरह माशरा चल नहीं सकता कि पैसे जमा भी करें और ना भी करें। ये कर रहे हैं ना, यही करने लगे हुए हैं, तो क्या ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा। कितनी हम एक तरह से जहन्नम की जिंदगी है इसको, जिसमें हम कर रहे हैं। और जमा करना हमने कला कहाँ से है, वो रवायत डालते हैं हमने, जो
اب सूरत तौबा की 34 और 35 नंबर आयत है जिसमें वईद सुनाई गई है माल को जमा करने की इंतहाई सख्त, कि उस माल से उनकी पीठें, पेशानियां, पहलू वो दागे जाएंगे जो सोना चांदी और पैसे जमा करके रखते हैं। हाँ जी, वो आई तो वो साहबा पर ग्रां गुजरी और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामला पहुंचा। आपने पूछा कि तुम ज़कात देते हो? उन्होंने कहा यहाँ देते। तो बस आपने कहा कि मसला हल हो गया कि ज़कात दे दी तो बाकी आप जमा कर लें। हाँ जी, बाकी माल जमा कर सकते हैं, बस फिर कोई मसला नहीं है। ज़कात देते हैं बस, ठीक है। फिर वो आयत ही साइड पे होगी और इतनी बहुत सारी याद सूरत माजा तो वो देख लें और बहुत सारी जगह पर माल जमा करने के वो एक रवायत हमने डाल दी कि वो आयात हजरत अब साहबा कराम पर ग्रां गुजरी। तो मैं साथ ही ये अर्ज करता हूँ, अब सूरत रात की 36 नंबर आयत को दे लें, वहां साहबा खुश होते हैं, जो आयात नाज़िल होती हैं। और मजमूई तौर पर अल्लाह ताला ने जनरल तौर पर बात बयान फरमाई है कि नबी जिनको हमने किताब आपको किताब दी और जिन्हें हमने किताब दी है, जब आप पर कोई आयत नाज़िल होती है तो ये बड़े खुश होते हैं। वो अल्लाह गवाही दे रहा खुश होने की। हमने रवायत से निकाल के ग्रां गुजरी है, बुजुर्ग हुई है उन पर, और वहां से वो हमने माल जमा करने का एक सिलसिला पैदा कर दिया। ये है हमारा हाल। और अच्छा, फिर खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया कि ज़कात देकर माल जमा नहीं किया। ये क्या बात हुई? इस्तिस्ना था कि आपको ज़कात नहीं देनी। ज़कात ना देने का तो इस्तिस्ना हो गया, माल जमा ना करना इस्तिस्ना कहाँ है? ये इस्तिस्ना है, ये पाबंदी लगा दी कि आपने जब माल नहीं जमा करना। ऐसी बात भी नहीं कर कि नबी ने खुद वो काम नहीं किया। नबी की जिंदगी हमारी उसवा हसना की बात है ना, हमारी जिंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन नमूना है। तो आपने खुद तो नहीं किया ये काम। आपने हमने एक रवायत को डाल के आपकी तरफ से मनसूब करके एक बात को चला दिया और निज़ाम बदल दिया, पूरा दीन बदल दिया, पूरे का पूरा सरमायादारी निज़ाम बना दिया। मैं वो बात फिर लंबी हो जाएगी कि हमने देखे किस तरह दीन को सरमायादारी निज़ाम, इस एक रवायत की वजह से दीन को यहूदियों का सरमायादारी निज़ाम बना के रख दिया। ये काम किया है हमने, वो एक रवायत, सिर्फ एक रवायत की वजह से सारे का सारा दीन बदल के रख दिया। और वो काम खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। कैसी इताअत करते हैं हम नबी की? आप बताएं, गौर तो करें जरा कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आप ज़कात देकर बकाया माल जमा कर। उस रवायत के हवाले से यही निकलता है कि हम कर भी रहे हैं, वो नहीं, हम कर भी रहे हैं, उसी के मुताबिक चल रहे हैं। हाँ, लेकिन नबी ने खुद काम नहीं किया। वो कहते हैं आपने ज़कात नहीं दी, आपने कभी अपने पास इतना माल ही नहीं रखा। जरूरियात कैसे पूरी करनी है आप बताएं? जिसने नहीं रखना माल, कहाँ से वो पूरी करेगा? क्या करेगा वो? ये नहीं सोचते, ये नहीं देखते कि ये अंदर डाली गई है रवायत, ये नहीं है। लेकिन कौन जरूरत करे? ये बुखारी शरीफ की रवायत को, कौन किसी भी रवायत को, एक हदीस को रद्द कर दें, काफिर का फतवा आप पर आ जाएगा, कुफर कुफर का। लोग उसी वक्त पत्थर मार कर जन्नत जन्नत हासिल कर लेंगे, आपको मार के या कत्ल करके जन्नत हासिल कर लेंगे। अब मेरे भाइयों गौर तो करें कि दीन को किस तरह बदल दिया गया। एक रवायत ने पूरे का पूरा दीन बदल के रख दिया। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम ने पूरे का पूरे अदालती निज़ाम को तबाह बर्बाद करके रख दिया, सारे का सारा अपने हाथ में रख कंट्रोल कर लिया। हुकूमत ने जिस तरह दिल चाहे उनका करे। एक रवायत ने पूरा दीन बदल दिया। तो आप इन बातों पर गौर किया करें। यहाँ मैं बस यहाँ बात मैं अपनी ख़त्म करता हूँ कि मेरे भाइयों ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये तजाद है, खुला तजाद है। आपके सामने बात रख दी है, तो बात सही यही है कि माल जमा नहीं करना, कुरान का यही है। ये जितने सवालात फिर आते हैं कि हमने अगर जमा नहीं करना तो फिर गुजारा कैसे करना, ये इसलिए ही आते हैं कि इस वक्त कुरानी निज़ाम नहीं है। अगर कुरानी निज़ाम हो तो फिर ये सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो मैं उसका 3 नकाती झंडा मैं अर्ज करता हूं कि प्रॉपर्टी नहीं बनानी किसी ने, किसी की जाती जमीन मलकियत है ही नहीं। ये अल्लाह के लिए, जो अल्लाह के लिए वो बंदों के लिए है। आप गौर तो किया करें, जब अल्लाह कहता है कि मुझे आप कर्ज दें तो आप किसको देते हैं? मेरे कर्ज हंसना दें, आप मुझे कर्ज दें, आप मेरी मदद करें। अल्लाह भी कहता है ना मेरी मदद करो, मैं तुम्हारा मददगार बन जाऊं। तो अल्लाह की मदद कैसे करनी? अल्लाह को मदद की जरूरत है। वही यही तो बात है। जिस तरह ये हवा, पानी, ये चीजें जो हैं, ये रोशनी है, सूरज है, सबके लिए है, कोई कीमत नहीं है इसकी। इसी तरह जमीन भी अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए है, उसके हर बंदे के लिए, सब बंदों के लिए है।
تو اس پر ملکیتیں بنانا کرنا یہ غیر اسلامی غیر قرآنی ہے. یہ ریاست نے پوری کر کے دینی ہے ہر بندے کو اس کی ضرورت کے مطابق. یہ اور کوئی مرتبہ نہیں دیکھنا. بات وہ لمبی ہو جائے گی جس طرح کرنا ہوتا ہے کہ یہ. اور دوسرا ہر بندے نے کام کرنا ہے. کوئی پیراسائٹ معاشرے میں نہیں, بھکاری نہیں, دوسرے کے مالوں پر پلنے والے یہ نہیں. ایسے بندے نہیں چل سکتے اسلامی معاشرے میں. ہر بندے نے کام کرنا. اس کے پیچھے بھی اس کے لیے بھی تربیت کی ضرورت ہے لوگوں کی کہ کام کیوں کرنا ہے. یہ تزکیہ نفس ہوتا ہے اس سے. اور تزکیہ نفس جس کا ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. اور کامیاب ہو گئے جس کا تزکیہ نفس ہے. مال دینے سے بندے کا تزکیہ نفس ہوتا ہے. یہ سورۃ لیل کی 19 نمبر آیت ہے. 18 نمبر ہے یا 19 نمبر آیت ہے. مال دینے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے. کام کرنا, کام کرنے سے کیا ہو, دو چیزیں ہیں نا. کام کر کے آپ دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں یا آپ کو دوسرے کو پیسے دے رہے ہیں. مثلا ایک ٹیچر ہے, وہ بچوں کو پڑھاتا ہے, محلے میں پڑھاتا ہے, مفت پڑھا رہا ہے, ٹیوشن پڑھا رہا ہے, مفت پڑھا رہا ہے, تو وہ ایک طرح سے پیسے دے رہا ہے, وہ اپنی سروسز دے رہا ہے. یہ دینا جو ہے یہ اس کا تزکیہ نفس ہو رہا ہے. اور صورت آپ شمس ہے اس کی بھی غالباً 9 نمبر آیت ہے جس کا تزکیہ ہو گیا, تزکیہ نفس ہو گیا, جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. بات پھر دور چلی گئی. تو میں یہ چیزیں ہیں, یہ اگر نظام ہو, قرآنی نظام ایسا ہو, تو پھر وہاں کوئی اس طرح کا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ پھر بھی میں نے یہ کام کیسے کرنا ہے, یہ کام کیسے کرنا ہے. آپ کے کام اس طرح ہونے ہیں, یہ سوال نہیں پیدا. یعنی کہ دو آپشن نہیں ہے, یہ تضاد ہے. اس طرح معاشرہ نہیں چل سکتا. تضاد دین میں ہو نہیں سکتا. وہ دین جو قرآن سے ماخوذ ہے, کیونکہ قرآن میں تضاد نہیں ہے. ایک اللہ کا, ایک قرآن, ایک رسول, اور اس کا دین بھی ایک, اور اس کے اندر تضاد نہیں ہے. یہ جمع کرنا اور نہ کرنا یہ تضاد ہے آپس میں. بس میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا میرے بھائیو سر دست. آپ کی مہربانی, آپ نے میری بات سنی.